हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं बीएससी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर मोशन। आपने +2 फिजिक्स में पढ़ा होगा मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन such a way that its position at time t is given by the vector function r of t, where r of t is the position vector of the object, then the velocity vector is the derivative of position vector, which is dr by dt, which is change in position vector with respect to time. Speed is the scalar quantity, which is magnitude of velocity vector. Direction of motion is p cap, which is unit velocity vector, which is equal to e of t divided by magnitude of p of t. Acceleration vector is change in velocity vector with respect to time, which is dp by dt, or simply second order derivative of position vector, which is d square r divided by dt square. The graph of position vector r of t is called the trajectory or path of a moving object, and r dash of t is the tangent vector to a trajectory at any point where v of t exists. And if v of t equal to 0, where velocity is 0, then the object is stationary. Next जो है components of velocity and acceleration. For a position vector r of t equal to x of t I plus y of t j plus z of t k, then the component of a velocity in the direction of a vector u is dot product of velocity and u cap, where u cap is the unit vector in the direction of u. And here the unit vector is defined as u divided by magnitude of u. Here the component of velocity in the direction of u is r dash t, where r dash t is the velocity vector and dot u cap is the unit vector along the direction u. Similarly, the component of acceleration in the direction of u is r double dash of t dot u cap, where r double dash of t is acceleration. तो इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। A particle moving along the curve r of t equal to tq plus 1i plus t square j plus 2t plus 5k. Find the components of velocity and acceleration at t equal to 1 in the direction of the vector 1, 1, 3. यहाँ पर हमें given है r of t equal to tq plus 1i plus t square j plus 2t plus 5k. यहाँ पर r dash of t जो कि है velocity vector जो होगा 3t square I plus 2tj plus 2k. एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा r डबल डैश ऑफ t, which is equal to 6ti plus 2j plus 0k. Here at t equal to 1, at dash of 1 जो होगा सिंपली t की जगह पर 1 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3i plus 2j plus 2k. सिमिलरली r डबल डैश ऑफ 1 जो होगा ये हो जाएगा 6i plus 2j. तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कंपोनेंट्स निकालने को बोला है along the direction of vector 1, 1, 3. Here vector u is 1, 1, 3. Then magnitude of u is root over of 1 square plus 1 square plus 3 square, which is equal to root 11. Here unit vector u cap जो होगा ये हो जाएगा 1 by root 11, 1 by root 11, 3 by root 11. And here the component of velocity along the direction of u at t equal to 1 is e of t equal to r dash of 1 dot u cap, which is equal to, here r dash of 1 is 3i plus 2j plus 2k, and u cap is 1 by root 11, 1 by root 11 and 3 by root 11. Then the dot product is 3 by root 11 plus 2 by root 11 plus 6 by
root 11, which is equal to 11 by root 11, which is equal to root 11. Similarly, the component of acceleration along the direction of vector q at t equal to 1 is r double dash of 1 dot u cap, where r double dash of 1 is 6i plus 2j and u cap is 1 by root 11, 1 by root 11 and 3 by root 11, which is equal to 6 by root 11 plus 2 by root 11, which is equal to 8 by root 11. नेक्स्ट जो है यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो हमें पता है जो टेंजेंट वेक्टर होता है ये वेलोसिटी वेक्टर होता है which is r dash of t, and the unit tangent vector is t of t, which is equal to r dash of t divided by magnitude of r dash of t, which is tangent to the curve and has a constant magnitude 1. Since the unit tangent vector has a magnitude 1, then its derivative is perpendicular to the t of t, and the principal unit normal vector is defined as n of t, which is equal to derivative of unit tangent vector divided by its magnitude, which is equal to t dash of t divided by magnitude of t dash of t. तो इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर t of t and the principal unit normal vector n of t for the curve r of t equal to 3 cos ti plus 3 sin tj plus 4t k. r dash of t जो होगा वेलोसिटी वेक्टर ये हो जाएगा माइनस 3 sin t i प्लस 3 cos tj प्लस 4k। तो यहाँ पर r dash t का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ माइनस 3 sin t का स्क्वायर प्लस 3 cos t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9 sin स्क्वायर t प्लस 9 cos स्क्वायर t, 9 कॉमन ले ले तो ये sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू 1, which is equal to 9 plus 16, which is equal to root over of 25, which is equal to 5. So here the unit tangent vector t of t is r dash of t divided by magnitude of r dash of t is equal to minus 3 by 5 sin t i plus 3 by 5 cos tj plus 4 by 5 k. यहाँ पर t dash of t जो होगा ये हो जाएगा माइनस 3 by 5 cos ti minus 3 by 5 sin t j plus 0 k. Here magnitude of t dash of t is root over of minus 3 by 5 cos t का स्क्वायर प्लस minus 3 by 5 sin t का स्क्वायर, which is equal to 3 by 5. तो यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होगा n of t इक्वल टू t dash of t divided by magnitude of t dash of t, which is equal to minus cos t i minus sin t j. नेक्स्ट जो है tangential and normal components of acceleration. The acceleration of a moving particles can be written as a equal to at t plus an n, where t is the tangent vector and n is the normal vector, and at is tangential component of acceleration and an is normal components of acceleration, where at equal to d square s by dt square and an equal to k into ds by dt का होल स्क्वायर। हम लेंथ ऑफ कर्व को s मान लेते हैं, देन स्पीड जो होगा ये हो जाएगा ds by dt, which is equal to magnitude of velocity vector, and यहाँ पर velocity जो होगा ये हो जाएगा magnitude of velocity vector along the direction of v cap, which is equal to magnitude of v cap जो होता है v divided by magnitude of v। तो यहाँ पर magnitude of v जो है स्पीड ds by dt and v by magnitude of v जो है यूनिट टेंजेंट वेक्टर is t। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर t जो है v divided by magnitude of v। अगर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो है r of t, यहाँ पर जो v होगा dr by dt divided by magnitude of v जो होगा ds by dt, which is equal to यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर जो होगा dr by ds।
सिमिलरली यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर होता है ये बराबर होता है टी डैश डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टी डैश विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी वेक्टर जो है टी आर बाई डी टी, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा टी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो पी का मैग्नीट्यूड टी एस बाई डी टी, तो इसका जो डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा टी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई डी एस स्क्वायर। लेट n is principal normal vector, then t square r divided by ts square जो होगा ये हो जाएगा k into n, where k is the curvature. Here this is denoted as equation 1 and this is denoted as equation 2. तो यहाँ पर देखो जो acceleration होगा a इक्वल टू यहाँ पर पोजिशन वेक्टर है r of t, एक्सेलरेशन हो जाएगा डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी बाई टी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो है डी एस बाई डी टी इंटू यूनिट टेंजेंट टी, इसका जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इंटू टी प्लस टी एस बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर टी प्लस टी एस बाई डी टी, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। तो इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर टी प्लस टी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 2 डी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर जो होता है ये होता है के इंटू एन, तो इससे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एस ऑफ टी आर बाई डी एस। तो यहाँ पर देखो डी आर बाई डी एस जो होता है ये टी होता है, तो यहाँ पर डी टी बाई डी एस जो होगा ये हो जाएगा के इंटू एन, तो यहाँ पर सिंपली डी टी बाई डी एस की जगह पर हम पुट कर लेंगे के इंटू एन। तो यहाँ पर टी जो है टेंजेंट वेक्टर एंड एन जो है नॉर्मल वेक्टर, and this is the tangential component and this is the normal component a t t plus a n n। अगर आपको फिजिक्स के ऊपर इतना आइडिया नहीं है कि और पता नहीं है कि कर्वेचर क्या होता है तो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स निकालने के लिए अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। लेट आर ऑफ टी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्मूथ कर्व and let theta be the angle between r dash t and r double dash of t. Since the acceleration a is r double dash of t, the component of acceleration is a t equal to magnitude of a cos theta or equal to r dash of t dot product of r double dash of t divided by magnitude of r dash of t, and the normal component is magnitude of a sin theta which is equal to magnitude of cross product of r dash of t r double dash of t डिवाइडेड बाई आर डैश ऑफ टी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन वेक्टर ले ले ए विच इज आर डबल डैश ऑफ टी, तो अगर ये आर डैश ऑफ टी या वेलोसिटी वेक्टर के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा होगा, यहाँ पर ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट या टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, और ये जो नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट होगा ये एक्सेलरेशन वेक्टर के, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ले ले तो ये इसका जो बेस हो जाएगा बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी एंड ये हाइपोटेनस एच, राइट। पर कॉस थीटा जो होगा पी बाई एच, एच जो है हाइपोटेनस इसका जो होगा हाइपोटेनस, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन वेक्टर है तो ये हो जाएगा एच जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। ये जो नीचे टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा P ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विद द पोजीशन वेक्टर आर ऑफ टी इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस साइन टी के
फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एट डैश टी जो होगा ये हो जाएगा cos टी आई, cos टी का जो डेरिवेटिव होगा ये हो जाएगा माइनस साइन टी जे प्लस साइन टी का जो डेरिवेटिव होगा cos टी के। और डबल डैश ऑफ टी जो होगा ये हो जाएगा माइनस साइन टी आई माइनस cos टी जे माइनस साइन टी के। आर डैश ऑफ टी और आर डबल डैश ऑफ टी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये हो जाएगा माइनस साइन टी cos टी प्लस साइन टी इंटू cos टी माइनस साइन टी इंटू cos टी विच इज इक्वल टू माइनस साइन टी cos टी। यहाँ पर आर डैश टी और आर डबल डैश ऑफ टी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के cos टी माइनस साइन टी cos टी माइनस साइन टी माइनस cos टी माइनस साइन टी। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ये हो जाएगा आई प्लस 0j माइनस के विच इज इक्वल टू आई माइनस के। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एट ऑफ टी जो होगा ये बराबर होगा रूट ओवर ऑफ cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी which is equal to root over of 1 plus cos square t. Then the component of acceleration is the tangential component is the tangential component का जो फॉर्मूला होता है r dash of t r double dash of t का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r dash of t। तो यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट जो है माइनस साइन टी cos टी डिवाइडेड बाय r dash of t का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर टी। सिमिलरली जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा ए एन इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r dash of t एंड r double dash of t डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r dash of t। तो ये हो जाएगा रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos square t which is equal to root over of 2 divided by 1 plus cos square t. Problem number 2, the velocity p and acceleration a of a moving object at a certain instant is p equal to 2i plus 3j minus k and a equal to minus I minus 5j plus 2k. Then find its tangential component and normal components of acceleration at this instant. तो यहाँ पर v डॉट a जो होगा ये हो जाएगा -2 -15 -2 which is equal to -19। और यहाँ पर v क्रॉस a जो होगा ये हो जाएगा I से k and the component of v is 2 3 -1, the component of a is -1 -5 2 का डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा I -3j -7k। ई क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 59। मैग्नीट्यूड ऑफ v जो होगा ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 14। तो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा एट दिस इंस्टेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट ए ऑफ टी जो होगा ये हो जाएगा e डॉट ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v विच इज इक्वल टू -19 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 14। नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा ए एन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ e क्रॉस ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 59 डिवाइडेड बाय 14। आई होप टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।